हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कैफे पॉडकास्ट। मैं हूं श्रीवंत। आज हम इस एपिसोड में जिनसे मिल रहे हैं वो है मिस्टर राकेश चावला। ही इज़ वन ऑफ इंडियाज प्रोमिनेंट वास्तु एक्सपर्ट हु इज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 30 years now. He is someone who has worked with clients across the globe, thousands of them, and he has written 3 bestseller books that's been there on the bestseller chart for years now. And he's going to talk to us today about the new version of Vastu, which is Quantum Vastu, and how it can transform your life. Thank you so much, Mr. Chawla, for coming over. It's such My a pleasure pleasure. to meet you. My pleasure. Welcome, sir. Thank you. Let's start with the very beginning कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और वास्तु में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? Very interesting question. वास्तु में मेरा इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही पैदा हो गया था. This is now we are going back to late 80s. Okay. At that time I was working for Philips India. And one Sunday a gentleman came, पंडित जी टाइप थे. वो आए और उन्होंने कहा मुझे कि बेटा मेरे को अपने एक कप चाय पिला दो. हमने चाय पिलाई उनको. फिर उन्होंने कहा कि आप अपने कमरे के अंदर ये आपका बेड यहाँ पे है, इसको इस साइड कर लो. और एक स्टडी टेबल थी, तो उन्होंने कहा वो स्टडी टेबल वहाँ पड़ी है, उसको आप यहाँ कर लो. तो मैं कहा पंडित जी इससे क्या हो जाएगा? तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड कि कोई नुकसान नहीं होगा. तो हमने कहा अच्छा. रात गई, बात गई, पंडित जी ने कुछ कहा, हमने सुना, एंड it was like over and done with. Till many weeks later, it just struck me कि जो पंडित जी ने कहा था, let me try to implement. How practical is that and what really happens? तो हमने पोजीशन चेंज कर ली, बेड की भी और वो स्टडी टेबल भी हमने हिला दी. The room suddenly started looking a little bigger and it started feeling better now. If I recall, I can say it started feeling better. But as what manifested was a couple of months down the line, whatever I was doing, any challenge that came in my professional life, I just felt that it was like, child's play. Targets, whatever were given, I would just laugh and I would say, bas itna hi. And literally, I would say, bas itna hi. And my boss would say, ki ye already bahut zyada hai. Khair, anyway, to cut a long story short, हमने देखा कि भाई everything is happening the way it really should, and I never attributed that to anything. उस एज में इंसान सोचता है कि भाई ये मैं ही हूँ, ये जो कुछ है मेरी मेहनत है एंड मेरी कैपेबिलिटी है. एंड सरप्राइजिंगली इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली दैट मी एंड माय टीम वी got the largest order probably in the history of Philips Lighting, which is the Indo-Pakistan border lighting. अब उसकी भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है. I'll not get into the nitty-gritties of that, but खैर that project, or when it started, it was running into couple of years. वो 2-3 साल चलते गया because it started from Rana of Kutch going up to Kashmir. And उसके दौरान while that project was on, I suddenly felt कि बहुत हो गया ये. I just had felt कि भाई now I don't really need to work and I have to be on my own. तो हमने कंपनी छोड़ दी. अब कंपनी छोड़ दी तो fortunately at that time my wife had a business center going, so I started helping her out. And एक दिन फिर वहाँ ख्याल आया कि ये मैंने जो चेंजेस की थी टेबल और उसकी बेड की, वो इज़ देयर समथिंग टू इट. दिस इज़ आफ्टर हैविंग लेफ्ट द कंपनी, बट द थॉट सडनली स्ट्रक मी कि क्या था वो. और जब फिर हमने पता कराया कि भाई ये प्लेसमेंट्स और डायरेक्शंस कोई चीज़ है, एंड वन देन रियलाइज की लर्न की येस देयर इज़ अ सब्जेक्ट कॉल्ड वास्तुशास्त्र विच इज़ वेरी प्रेवलेंट डाउन साउथ. नॉर्थ के अंदर उसकी अभी इतनी वो थी नहीं. कोई हमारे पास उस टाइम पे कोई ऐसी बुक्स भी नहीं मिलती थी. The internet had also just about started, so one didn't even know where to get that information from. खैर anyway, वो थी शुरुआत की भाई हाँ ये एक सब्जेक्ट है, this deals with directions. एंड हमारी फिर वो खोज शुरू हो गई to get into it कि ये है क्या चीज़. So बस वो खोज जो तब शुरू हुई थी, I would say in early 90s, वो आज तक चली रही. तो आप एक स्टेबल कॉरपोरेट जॉब को छोड़ा आपने और उसको छोड़ के आपने बिजनेस में अपनी वाइफ को ज्वाइन किया और उसके बाद से एकदम से बिल्कुल नई फील्ड में आप चले गए. तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन करने में आपको थोड़ा फियर, कंसर्न नहीं हुआ कि क्या होगा? एक बिल्कुल नई चीज़ है, एक स्टेबल लाइफ, स्टेबल करियर को छोड़ के कुछ अननोन की तरफ जा रहा हूँ. उस समय तो शायद इतना वास्तु का चलन भी नहीं था, इतना इस फील्ड में अवेयरनेस या इतना ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी. तो क्या मोटिवेशन था आपका? इसी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Motivation was just the inner calling, which led me to take those steps and resign from a very खुशी and job where the performance was outstanding. उसको छोड़ के जब हमने बिजनेस सेंटर ज्वाइन किया, फॉर्चुनेटली कि माई डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस was not
outside of what was there, it was within the house. तो one could take care of the family. बड़ी वो ज़रूरी चीज़ होती है. बट आपने जो बात की एक्सेप्टेंस की, इट वाज वेरी मतलब कि वेरी लो एक्सेप्टेंस बाय माय ओन फैमिली कि ये कर क्या रहा है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के इसने, इजी टू गेस, हाँ ये इसने क्या क्या कर दिया. तो आप मानेंगे नहीं कि इनिशियली माय फादर यूज्ड टू बी वेरी रिलक्टेंट टू से कि मेरे बेटे ने वास्तु शुरू कर दिया, ये वास्तु की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि सारों को कि वास्तु होता क्या. करेक्ट. So yes, initial there were a lot of challenges, but I guess as you overcome the challenge, you learn a lot. You see, either you have challenges and you succumb to the challenges and you say कि चलो छोड़ो यार, बड़ी बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े सवाल जवाब करने पड़ते हैं. बट मेरे को वो बड़ा मोटिवेट करता था कि अच्छा कि अब ये चैलेंज है तो लेट्स. तो फिर शुरुआत कैसे हुई? फिर आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में, आपने कोई कोर्सेज किए, आपने कैसे उस आप टाइम पे उतरे, कैसे अंदर कैसे उतरे इस फील्ड में? इस फील्ड में ऐसे उतरे कि शुरू में हमारे को एक दो बुक्स मिली और वो भी हमारे कोलीग्स वगैरह ने अरेंज कराई साउथ से. तो उनको जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये इस सब्जेक्ट में कुछ दम तो है कि भाई ये प्लेसमेंट्स करके आप एनर्जी को के फ्लो को चैनलाइज कर लेते हो. एंड देन वन ऑल्सो रियलाइज कि ये कहानी तो सारी 5 तत्वों की है, द स्टोरी ऑफ 5 यूनिवर्सल एलिमेंट्स. अब बात हो रही है इस सब्जेक्ट के अंदर कि इनकी प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, इनका बैलेंस कैसे होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो जो स्टडी शुरू हुई वो चलते ही गई. मतलब इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल एलिमेंट्स, आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन देम, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम. यू एंड आई आर ऑल्सो नथिंग बट दोज 5 यूनिवर्सल एलिमेंट्स. बात तो ये यूनिवर्सल एलिमेंट्स और एनर्जी की है. उसकी अलाइनमेंट और उसका फ्लो कैसे अरेंज किया जाता है इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वास्तु. तो बस वो जो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने समझा, तो देन वन स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. पहले अपने घर में ही किया, अपने बिजनेस सेंटर में ही किया, फिर यारों दोस्तों के पास नोन पीपल, कजन्स एंड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड शेयरिंग विद देम कि दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ लर्नड. रिलक्टेंस उनको भी होती थी, सबके लिए नया सब्जेक्ट था. सो वो उसको नए को इम्प्लीमेंट करने में आई वॉज वेरी केयरफुल कि किसी की हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ना कराएं. सो शुरुआत में ही मेरा ये था कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करानी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है इसी को हम कैसे इसकी बेहतरी कर सकते हैं. बिकॉज आई राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वुड लिंक स्ट्रक्चरल चेंजेस टू सर्जरी ऑन द ह्यूमन बॉडी. तो ये समझ में आया कि भाई अगर शरीर में कोई अगर तकलीफ होती है, यू स्ट्रेट अवे डोंट स्टार्ट विद सर्जरी. करेक्ट. You would go for some medication, some change in your lifestyle, some change in diet, doing some exercises, or you try to overcome the discomfort by various minimal changes. और सर्जरी तो फिर लास्ट में होता है ना कि अगर उसके बावजूद भी कुछ ना हो एंड थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, देन वन थिंक्स ऑफ सर्जरी अनलेस एंड until there is an accident or something which is unforeseen that happens, so you have no choice but to go for surgery. Otherwise सर्जरी कौन कराता है. तो मेरा वही था कि भाई सर्जरी से क्यों शुरू करें. तो वास्तु की फंडामेंटल थ्योरी क्या है? वास्तु की देखो फंडामेंटल थ्योरी ये है कि इफ़ यू सी अराउंड योरसेल्व्स, लेट्स से यू टेक द प्लैनेट अर्थ. अब हमारा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ इज़ नाउ वन एलिमेंट, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर. कोई कहता है 70% है, कोई कहता है 90 है, खैर वॉट एवर इट इज़, वी नो it is surrounded by water. This water evaporates due to the heat of the sun. That evaporated water, it forms clouds. And once the clouds cannot retain the water which they have, then it comes back in the form of rain. तो ये एक cycle of element है which you can see कि this goes on and this is a life sustaining cycle. कि भाई इसमें पानी उठता भी है, पानी फिर ऊपर बादल भी बनते हैं, बादल पानी को फिर रिलीज़ भी करते हैं, तो पानी का फिर वो इक्विलिब्रियम जो है अर्थ एंड वाटर का वो मेंटेन भी होता है. तो ये एक लाइफ सस्टेनिंग साइकिल है. अब ये जो 5 एलिमेंट्स की जिनकी हमने बात की है, ये यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं. अब ये फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर जो हैं, इनकी वास्तु के अंदर देयर आर सम गिवन डायरेक्शंस. नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम पानी को रखते हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि रखते हैं, साउथ वेस्ट के अंदर अर्थ एलिमेंट आता है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा एयर एलिमेंट आता है और सेंटर के अंदर स्पेस आता है. तो ये 5 एलिमेंट्स की ये प्लेसमेंट्स इस हिसाब से है. अब उस टाइम पे एक सवाल उठता था कि ये ऐसे ही क्यों है, ये पानी नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखा हुआ है आपने, आपका अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट के अंदर ही क्यों है.
अब जो हमने पढ़ा था तो हम कहते थे कि भाई ये पढ़ा तो ये ऐसे है। फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो अर्थ एलिमेंट है ये दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, तो हमारा सेंसरी परसेप्शन आ गई नोज। फायर जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, लाइट आती है उससे, तो हमारा सेंस ऑर्गन हो गया एयर, राइट, सॉरी आइज हो गई। एयर जो है उससे मतलब फीलिंग्स जनरेट होती हैं, तो उसका हमारा सेंस ऑर्गन हो गया हमारा स्किन, राइट। साउंड जो है वो उसको परसीव करने के लिए द सेंस ऑर्गन इज ईयर्स, और जो पानी से या जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका सेंस ऑर्गन हो गया हमारा टंग। तब आप अब ज़रा 1 मिनट सोचो कि आपकी आइज़ भी आ गई, नोज़ भी आ गया, ईयर्स भी आ गई, टंग भी आ गई, इसमें आपका कितना रोल है कि ये यहाँ पे ही ये हैं क्योंकि हैं। This is natural, gifted They are by God. natural, yeah. So this is a larger plan why they are the way they are, but this is what makes us the human DNA. तो ये वास्तु का जो DNA है कि ये इस डायरेक्शंस में क्यों है, is the same basis. अच्छा, वास्तु is it a fundamentally Indian ancient science या Very कहीं much so. और जनरेट हुआ था No, no, इंडिया no. में Very much, very much. It is very much Indian. We find the origin or the reference of Vastu in our Vedas and Upanishads. It's ओके and then there are so many shastra which are written about Vastu. So it has its origin. Some people feel that कि जो Chinese है Feng Shui, Vastu came from there. But the fact is that this went to China via Tibet and it became Feng Shui or whatever. It is just like martial arts. Everyone feels that the origin is outside India. But the fact is it originated from Kerala. And then went all over the world and got different names because all the techniques were लोगों ने अपने हिसाब अपने से अपने adapt हिसाब किया। से उसको फाइन ट्यून कर लिया। उसी तरह से वास्तु ओरिजिनेट यहाँ हुआ और जहाँ भी गया जहाँ लोगों भी ने गया उसका वो उसका वैसे ही नाम और उसका प्रचार होते रहा। अच्छा, what is the reason that Vastu has I think in last 15 years, I would say, has become suddenly so popular, and it's become a very strong subject. Builders talk about it while making buildings, and people want to focus on Vastu when they're building their houses. Suddenly, it's become the buzzword in last decade or so. जब हम छोटे थे, हमारे घर बनते थे, हमारे दादाओं ने घर बनाए, फादर ने घर बनाया, तो वास्तु का कहीं इतना बड़ा कोई डिस्कशन तो होता नहीं था। घर बना, पूजा हो गई, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। लेकिन आज वास्तु इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? देखिए ऐसा है कि उस टाइम पे व्हाट यू आर सेइंग इज़ वेरी राइट कि वो घर बनाते थे तो बस वो घर के बीच में एक आंगन रख देते थे जी, उस आंगन के अंदर एक तुलसी का पौधा ज़रूर होता था। बिल्कुल। वो दरवाजे को देखते थे कि भाई ये किस दिशा में है, जब सूर्य उठता है तो उसकी किरण आती है कि नहीं दरवाजे पे। तो इन शॉर्ट वो क्या कर रहे थे, हम वो अलाइन कर रहे थे कि ये ईस्ट फेसिंग है कि नहीं, बीच में आंगन है कि नहीं, तो सेंटर हमारा खाली है कि नहीं। अननोइंगली वास्तु वाज बीइंग फॉलोड। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। साउथ के अंदर ये बड़ा प्रेवलेंट था, तो वहाँ हर एक चीज़ हिसाब से होती थी। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन वास्तु। अब आपने जो पूछा कि ये पिछले 10-15 साल के बाद क्यों सडनली इतना पॉपुलर हो गया है, भाई जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें, तकलीफ़ें, रैट रेस बढ़ते जाती है तो वन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर एक्सटर्नल एंकर्स कि भाई कहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी वाज वन एंकर विच वाज बीन यूज्ड बाय इंडियंस और प्रॉब्ली अक्रॉस द वर्ल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड सब्जेक्ट, उसकी भी रेफरेंसेस बहुत जगह हैं। और पहले तो एस्ट्रोलॉजी यूज्ड टू बी ज्योतिष विद्या, तो वो ज्योतिष विद्या से फिर वो एस्ट्रोलॉजी बन गई और वो जो मैनुअल कैलकुलेशंस थी वहाँ से वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ ही अब ऑटोमेटेड हो गया है। वास्तु का जो प्रचार शुरू हुआ वो ये था कि भाई देयर वाज like I said, the hardships when they started increasing, so people started looking for other answers. And ये 80s early 90s की बात है, it was not only Vastu which was picking up, Feng Shui also had sort of come into India around that time. And subjects like Reiki, pranic healing, alternate medicine के ये काफ़ी subjects इनका प्रचार हो रहा था। तो ये शुरू तब हुआ था, बट लाइक इन अ वेरी सटल एंड वेरी साइलेंट एंड अ वेरी हम्बल मैनर। अब इनकी सडनली देखो हर एक सब्जेक्ट का ना एक टिपिंग पॉइंट आता है। टिपिंग पॉइंट तब आता है कि व्हेन द अवेयरनेस स्प्रेड्स एंड एक्स नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन अ कॉन्सेप्ट। अब ये कोई वास्तु वाज नॉट एन ओवरनाइट सेंसेशन और अ सब्जेक्ट विच वाज नो रेफरेंस और इट इज़ मैन मेड। वो उसका रिवाइवल हैपेंड एट दैट टाइम
Why? Because that was the time when it was supposed to be revived. That is my belief. नहीं तो ये उससे पहले ही आ जाता और पॉपुलर हो जाता. पर इसका वो अर्ली 90s का ही टाइम था जब इसकी शुरुआत लाइक रीसर्जेंस ऑफ वास्तु स्टार्टेड हैपनिंग. अब उसके बाद as the resurgence started happening, the number of proponents they started increasing, media started talking about it. There were TV channels that started conducting programs. So as the awareness spread, people felt कि हाँ इसमें कुछ तो है. मीडिया ने इसको मीडिया ने डेफिनेटली इसका मीडिया तो हर एक सब्जेक्ट को अनलेस अंटिल यू हैव मीडिया सपोर्ट इट डजंट कम इनटू द लाइमलाइट और रिकग्निशन. अब आप देखिए कि योगा इतना पॉपुलर हो गया, अब तो वर्ल्ड योगा डे बन गया. योगा वाज ऑलवेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग. पर वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ? अब वो भी तो आप देखो, इट वाज अराउंड दैट टाइम. मे बी कुछ 5-10 साल आगे पीछे आप कर लो, पर अब वर्ल्ड में योगा हर जगह फैल गया बिकॉज पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दे आर बेनिफिट्स ऑफ योगा. व्हेन यू डू योगा यू आर बिल्डिंग अप योर इम्यूनिटी, राइट? आई फील वास्तु इज योगा इन आर्किटेक्चर. गुड पॉइंट. भाई आप घर को जो जैसे योगा के डिक्टाट्स हैं उनको उसके हिसाब से बनाओ तो आपके घर की इम्यूनिटी बढ़ जाती, राइट? सो जो घर में रह रहे हैं उनकी इम्यूनिटी या उनकी हैप्पीनेस दैट इंडेक्स स्टार्ट्स राइजिंग. तो ये चीज़ जो वहाँ से शुरू हुई, अब तो देखा जा रहा है कि इसके बिना लाइक व्हाट यू सेड कि बिल्डर्स दे डोंट बिकॉज दे हैव नो चॉइस. इनफैक्ट मुझे लगता है आज की डेट में कोई भी जब घर खरीदने जाता है, दिस बिकम्स अ प्राइमरी डिस्कशन. इवन बिफोर यू विजिट द प्रॉपर्टी इट बिकम्स अ प्राइमरी डिस्कशन के नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है या किस तरफ फेसिंग है या किचन किधर है. ये प्राइमरी डिस्कशंस में आ गए हैं जो पहले इतना ज़्यादा नहीं होते थे. एंड आई थिंक बिल्डर्स हैव ऑल्सो रियलाइज, तो वो भी उन्होंने भी अपना शुरू से ही अपने आप को ट्यून कर लिया है, नोइंग दैट इसके बिना बिकेगा नहीं. एग्जैक्टली क्योंकि वो यही फील करते हैं कि भाई जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या शुरुआत करते हैं तो वो अपने इनिशियल स्टेजेस में जब उनकी सेल्स शुरू होती हैं तो द क्लाइंट्स हु कम, जो भी उनके बायर्स होते हैं, सो दे थिंक नाउ मोर एंड मोर बायर्स आर आस्किंग फॉर इज इट वास्तु कंप्लाइंट. तो कहते हैं कि अनलेस अंटिल नाउ वी हैव समथिंग इफ नॉट टोटली कंप्लाइंट बट इफ यू हैव नॉट फॉलोड एटलीस्ट 10-20% ऑफ इट, हाउ डू वी से कि हाँ हमने वास्तु का ध्यान में रखा. तो उनके लिए अब काइंड ऑफ अनरिटन लॉ इज इट इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग मैंडेटरी फॉर देम टू ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग टू whatever extent they can, because a lot of architects today, even though they believe, they try to please the client and they do not follow it the way they should, right? But interestingly now in architectural institutions also I am understanding कि वहाँ पे भी अब ये वास्तु के courses induct हो रहे हैं. There are chapters on vastu, so they have classes on vastu, so they are trying to incorporate vastu in architecture. अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक पिक किया. जैसे हमने योगा की बात की, तो योगा में अगर कोई आगे आके कहता है कि मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, देन यू कैन आस्क फॉर अ डिग्री एंड देन ही मे बी एबल टू प्रोड्यूस अ डिग्री स्टेटिंग दैट आई हैव डन 3 years इन योगा और थिंग्स लाइक दैट, राइट? बट वास्तु में क्या कोई ऐसी संस्था है आज की डेट में देश में जो वेरीफाई कर रही है या वैलिडेट कर रही है दैट ही इज़ अ वास्तु एक्सपर्ट? क्योंकि उसके बिना हाउ डज अ कॉमन मैन clarify whether he is actually a vastu expert, whether it is actually vastu compliant or not? आम आदमी को पता कैसे चलेगा? आपने हाँ, बड़ा ये इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है. इसका ऐसे है कि देखिए फॉर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ देयर इज नो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज दैट इज टीचिंग दिस सब्जेक्ट. But there are so many institutions which are now they've got recognition by virtue of whatever work or education that they're doing. So this is also one of the subjects which they are teaching. Okay. But per se, if you ask, is there any recognition? No, there is no recognition. And I think similarly, yoga की कोई वो government recognized institution नहीं है. You might have a lineage, आपने किसी गुरु से सीखा है जो आगे कहीं और से सीख के आए हैं. That is fine, but वो institution जो सिखा रही है वो government recognized है कि नहीं है? It's a big question. Yeah, it's a big question mark. So while these things are getting very popular, but इनका वैलिडेशन अभी भी थोड़ा ग्रे जोन में है. अभी ग्रे जोन में, एब्सोल्युटली अभी ग्रे जोन के अंदर. Which actually allows people with half-baked knowledge to also get in because there they are no get entry into barriers. it and they also start preaching. They start yes, preaching yes, and yes. it becomes difficult. Anyway, so that's a problem which we clearly see. Now coming back to your journey, आपने जो शुरुआत की, जब आपने स्टडी किया, आप क्लाइंट्स के पास गए,
फिर आई वाज रीडिंग दैट आपने खुद किताब लिखी, तो थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में, किताब लिखने का मोटिवेशन कैसे आया और क्या वो क्या स्टोरी थी? एंड आई थिंक दैट बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर आल्सो, राइट? या वो किताब यहाँ ही पढ़ी है ये. दिस इज़ द फर्स्ट बुक विच आई रोट. इट्स कॉल्ड द पॉकेट बुक ऑफ वास्तु. यू कैन शो इट टुवर्ड्स द कैमरा. दिस इज़ द पॉकेट बुक ऑफ वास्तु. तो ये किताब जो लिखी गई इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है फुल सर्कल का. तो ये फुल सर्कल वाज अ वर्टिकल ऑफ हिंद पॉकेट बुक्स. उस टाइम के बड़े मशहूर पब्लिशर होते थे. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द 90s, मिड टू लेट 90s की बात है. सो उन्होंने मतलब मुझे कांटेक्ट किया था टू कंसल्ट फॉर वास्तु for their own publishing house, because they were starting this new vertical called Full Circle, and they were setting up the office. They were also setting up a cafe for this. It was called Cafe Turtle at that time. So जब ये उनकी शुरुआत थी और उन्होंने कंसल्ट किया तो हमारी आपस के अंदर लाइक हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो गई. एंड आई वॉज नॉट रियली अवेयर कि ये हिंद पॉकेट बुक्स ये कितना बड़ा पब्लिशिंग हाउस है. बट बाद में पता चला कि वो तो जो उनके फादर थे शेखर जी के, वो तो पद्मश्री थे. इन दिस प्रोफेशन ही वाज अवार्डेड पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ पब्लिशिंग. खैर एनीवे, तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इंटरेक्शन हुई तो एक दिन उन्होंने कहा कि राकेश आप वास्तु के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा किताब मैंने कभी लिखी नहीं है और पब्लिश कौन करेगा? तो बोथ शेखर एंड पूनम, शेखर जी तो अनफॉर्चुनेटली इज नो लॉन्गर देयर, दे सेड इजंट दैट अ वेरी सिली क्वेश्चन. जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप किताब क्यों नहीं लिखते और आप हमको पूछ रहे हो कि पब्लिश कौन करेगा, तो आई सेड ओके ओके आई हैव गॉट इट. तो फिर दे मोटिवेटेड मी टू राइट माई फर्स्ट बुक. एंड आई वुड से दे हैंड हेल्ड मी ऑल द वे थ्रू फ्रॉम तब तो वो मैनुअली लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट उनके पास जाती थी, करेक्शन होके आती थी, फिर यार वेरी लॉन्ग प्रोसेस. बट फाइनली दिस बुक came about, and it was at that time it was one of the best sellers. It was referred by practically all the architects because इसमें हमने बड़ा clear fundamentals explain करे हुए हैं कि भाई what are the preferred zones of placement of different activities in a house or an office or an industry. तो चावला साहब फिर सेकंड बुक लिखने का ख्याल कैसे आया? वो कब लिखी? हाँ, ये देखिए जो पहली किताब जो लिखी थी ये 97 में पब्लिश हुई थी. फिर इसकी लाइक आई सेड द बुक बिकेम क्वाइट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल. सो देन इट वाज डिसाइडेड कि भाई अब एक इसका कोई सीक्वल भी लिखते हैं. तो फिर हमारी दूसरी किताब ये 2003 में ये पब्लिश हुई थी. दिस इज़ वास्तु फॉर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो ये किताबें आपकी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं हार्ड कॉपी? हाँ, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ये अभी भी अवेलेबल. सो वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाँ जी, या इफ समवन वांट्स दैट देन यू कैन गिव. श्योर. सो ये फिर दूसरी किताब लिखी गई है 2003 के अंदर. तो इसकी भी फिर किताब की जैसे अपनी जर्नी थी, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई. एंड उसके बाद ये सब्जेक्ट लाइक इट सडनली in early 2000s this subject was gaining a lot of popularity. So then lot of material, lot of books, lot of articles, lot of TV programs, सारा कुछ शुरू हो गया इस सब्जेक्ट के ऊपर. तो अब मैं आपसे बात करूंगा आपकी नई बुक के बारे में जो आपने अभी लिखी है, विच इज़ क्वांटम वास्तु, विच यू हैव ब्रॉट ऑल्सो हेयर. आई वांट टू अंडरस्टैंड what is the difference between Vastu and Quantum Vastu? What is the upgrade here? Very interesting. You see, upgrade ये है इसमें कि over the years जो हमने like I said ये 2003 में किताब लिखी थी and उसके बाद the clientele it started spreading from individuals to offices to corporates and MNCs. तो वो बढ़ते गए. So जैसे जैसे clients का like one starts going up the ladder of the type of clients, वैसे वैसे challenges भी बढ़ते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी अब छोटे क्लाइंट के पास हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड लाइक व्हेन ही कंसल्ट्स एनीवन, तो उसको सजेशंस दी जाती हैं. यू सी सम आर मोस्टली आर नॉट स्ट्रक्चरल चेंजेस बिकॉज अब बहुत रेमेडीज अवेलेबल हो गई हैं. पर जब सजेशंस दी जाती हैं तो दे आर टाइम्स एंड वन सेज कि ओके लाइक मूविंग योर ऑफिस और योर केबिन फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर मे बी advantageous, which is as per the dictats of Vastu.
तो वो इंडिविजुअल्स या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना इट बिकम्स वेरी इजी एंड इजी ऑल्सो, क्योंकि वो एक फैमिली कंपनी है, उसके अंदर यू नो द फैमिली और द हेड हैज़ टू टेक अ डिसीजन एंड इट्स वेरी इजी टू हैव इट इम्प्लीमेंटेड। पर अब आप अपस्केल कर दो इसी बिजनेस मॉडल को, अब ये एक एमएनसी बन गई है। अब एमएनसी के अंदर आप जब जाओ तो और आपको वहाँ पता चले कि भाई नाउ द प्लेसमेंट्स ऑफ ईदर द सीईओज केबिन और द हेड ऑफ एचआर और हेड ऑफ मार्केटिंग इज नॉट वेयर इट आइडली शुड बी, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्लेसमेंट्स कोई चेंज नहीं होंगी, रूम्स अपना कोई नहीं छोड़ेगा, अब आप बताओ कि आप यहाँ पे कैसे बेटरमेंट ला सकते हो। सो नाउ दीज चैलेंजेस व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग, तो वन हैड टू लुक फॉर आंसर्स व्हिच वर आउट ऑफ द बॉक्स। यू नो, यू कांट लुक फॉर आंसर्स बिकॉज जब आप कर ही नहीं सकते तो क्या करो। दैट इज व्हेन वन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई हम जब प्लेसमेंट्स करते हैं तो व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी आर चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स और व्हेन वी आर यू नो सजेस्टिंग कलर्स, वी आर ओनली प्लेइंग विद एनर्जी, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द एनर्जीज इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स। एंड एनर्जी किसको फॉलो करती है? हमने एक फिजिकल फॉलो कर दिया एनर्जी को, लाइक वे वी आर सिटिंग, हम इसको यहाँ से, ये भी एनर्जी है, इसको मैं यहाँ से उठा के इस साइड पे रख लूँ तो आई एम शिफ्टिंग द एनर्जी ऑफ दिस स्पेस बाय दिस मूवमेंट, राइट? नाउ क्वांटम की आपने जो बात की है, क्वांटम कहाँ से आया? क्वांटम आया विच सेज कि एनर्जी फॉलोज थॉट। ओके ना ये एक बहुत पुरानी कहावत है, एनर्जी फॉलोज थॉट, बट क्वांटम में इसको कहा जाता है द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। दे से क्वांटम इज अ फील्ड ऑफ एनर्जी जिसके अंदर यू नो लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड द पॉसिबिलिटीज आर देयर एज अ वेव। अब उस वेव को आप क्या सोच रहे हो, जो कोलैप्स होएगी वो वेव टू अ पार्टिकल एंड देन यू नो व्हिच टेक्स अ मैनिफेस्ट फॉर्म, वो जो थॉट आएगा आपका वो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, मतलब इट इज दैट यू आर ऑब्जर्विंग दैट, तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। सो दैट फ्रॉम द वेव इट बिकम्स पार्टिकल, सो फ्रॉम मेटाफिजिक इट कम्स टू अ इट स्टार्ट्स टेकिंग अ फिजिकल फॉर्म। ओके ये क्वांटम की रिसर्च है, ओके राइट? दिस इज साइंटिफिक This is scientific. I mean, like there is nothing which is this is scientific that you know energy follows thought. अब when energy follows thought, तो ये हमने कहा कि भाई ये अब हम वास्तु में भी इसको अप्लाई करते हैं ना। एक तो वास्तु को फिजिकल एप्लीकेशन थी that everything has to be oriented based on certain dictats. तो अब जहाँ चैलेंज आ गए तो अब वहाँ पे हमें थॉट के साथ वन हैड टू स्टार्ट प्लेइंग विद द थॉट पार्ट ऑफ इट मोर। अब थॉट पार्ट से हम कैसे प्ले करना शुरू कर दिया कि भाई अब किसी को कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है, अब उसके केबिन में या उस हॉल के अंदर वॉट एवर इज पॉसिबल टू डू एट द फिजिकल लेवल, लेट्स से वेदर इट इज जैसे आपने प्लांट्स रखे हुए हैं या लाइट्स लगाई हुई हैं या कुछ भी है, मतलब कि देयर आर सो मेनी व्हाट यू कॉल टूल्स व्हिच आर यूज्ड एज वास्तु सॉल्यूशंस, आपने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप ये इम्प्लीमेंट करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? You see, now this is the question which is normally asked to the client कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो अब वो जो कहता है कि what are the expectations, हम कहते हैं कि अब ये expectations आपकी जो existing issues हैं वो लिख लो, and what you are expecting to get out of it उसको एक और जगह लिख लो। issues की जो लिस्ट है हम कहते हैं इसको बर्न कर दो, we are burning your issues। और expectations की जो इशू है इस पे आप फोकस करना शुरू कर दो। तो when the focus starts coming on what is expected, right? Very small changes within that cabin or the hall, they start manifesting. Otherwise क्या होता था कि हमको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कई जगह करानी पड़ती थी। पर जब ये हमने देखा कि ये थॉट जब बीच में आता है, क्योंकि जो बेसिक प्रमाइस इज दैट एनर्जी फॉलोज थॉट, तो उसको इनहेंस करते करते ये हम क्वांटम पे पहुंच गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बोलता ही सिर्फ एनर्जी और थॉट के बारे में। यू सी द सब्जेक्ट सेज वेरी क्लियरली कि अर्लियर मैटर वाज परसीव्ड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, नाउ यू हैव टू सी द यूनिवर्स एज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। क्योंकि जो ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं ये भी एट द माइन्यूटेस्ट लेवल दे आर आल्सो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब वो हमें दिखता नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो है नहीं, तो साइंस कह रही है कि है तो यही। नॉट सीइंग और नॉट परसीविंग डज नॉट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। करेक्ट। सो दिस इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ वास्तु। एंड एक चीज बहुत और इंटरेस्टिंग है विच आईड लाइक टू शेयर। वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन। वो यूट्यूब पे है, आप उसे जरूर देखिए। वो 1.5-2 घंटे की है एंड आई एम श्योर इट वुड बी ऑन यूट्यूब।
उसके अंदर है कि भाई दे शॉलिंग मॉन्क्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा Yeah. कि लाइक दे प्रैक्टिस Very tough. the very tough they practice the martial arts, and there are various there are 36 chambers where each chamber has they teach certain exercises or certain techniques. And जो ये learner होता है मतलब जिसके बारे में मूवी बनी है, that one very young monk who was very keen to learn this whole thing, तो वो गलती से 36 चैम्बर में घुस जाता है। अच्छा, शुरुआत में ही। हाँ, तो वो गलती से घुस जाता है एंड वहाँ पे कोई there is no exercise, there is no martial art, there is no technique being taught, but there is one very elderly gentleman and he looks at this boy and he does this. और ये गिरता पीछे जाके। ये जब मैंने पिक्चर देखी थी उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया था कि ये मतलब क्या है। बट आज अगर कोई पूछे तो ये चीज के अंदर मतलब माइंड की जो पावर है वो इतनी है कि इट कैन मूव मैटर। इज इट? इट इज। तो ये पिक्चर तो बहुत पुरानी है। अब माइंड मूविंग मैटर तो खैर दे आर वेरियस केसेस, दे आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पीपल रिकवरिंग फ्रॉम डिफरेंट critical illnesses or achieving certain things which logically or perceivably they sounded impossible. But when you decide कि नहीं हमने कोई चीज करनी है, then you do the impossible. And then there are various episodes, there are various examples which are based on what people have achieved when everything was totally going against. Against आपके तभी जाता है when you give up. आप खुद अगर कोई चीज करना छोड़ दो, then when you give up, that is when you feel कि भाई things have failed or you can't move forward. But so long as you don't give up and you feel कि नहीं there has to be a way out, वो way out निकलेगा ही। So ये कहाँ से निकल रहा है? ये way out कहाँ से निकल रहा है? It is just a dimension of the mind that we can't perceive. हमारी sensory perception जिसको हम जो perceive करते हैं and we say कि this is real. It is real so long as we believe it is real. That there are no two ways about it. But there is something which goes beyond sensory perception. अब क्योंकि वो beyond sensory perception है तो उसके लिए हमारा logical mind अब नहीं चल रहा। हमारे को अब subconscious mind को और या intuitive mind वो that comes into play. For example, जो हमारा logical mind है ये sensory perceptions को assimilate करता है और इनसे अपनी logic derive करता है। पर किसी ने कभी ध्यान से कभी सोचा है कि other than our sensory perception, we have higher faculties of the mind also, which are your reasoning, your intuition, your memory, your willpower, and above all, your imagination. अब इनकी कौन सी बताइए, कौन सी इसकी सेंस ऑर्गन्स है जो ये हायर फैकल्टीज को नर्चर करते हैं? Very difficult to figure out. So there is something which is beyond what is logic. Correct. And then there is, let's say उसको हम एक सेपरेट डोमेन दे देते हैं। तो इसको आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग दिस इनटू वास्तु कि भाई एक तो मेरा फिजिकल लेवल है विच इज लॉजिकल बिकॉज वो किताबें बताती हैं उसके बारे में, एक्सपीरियंस बताते हैं कहाँ ये है। एंड देन देयर इज ऑल्सो अनदर डोमेन वेयर आई कांट गो फिजिकली बट आई कैन गो इंट्यूटिवली, आई कैन गो देयर इन माई इमेजिनेशन। तो मैं इसको अपने सब्जेक्ट में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करता? फिर आप दैट इज द amalgamation of that is the emergence of quantum so vastu. what is this book all about? If you could just talk a little bit about this book, Miracles of Vastu, that you have here. You see, this book speaks about what is it, like I said, it speaks more of the mind space belief, also about what the subject of Vastu is, and how with our mind, the space and our belief system, how we can mold our what we say reality basis this. तो हम जो अभी तक कर रहे थे बाय फिजिकल मूवमेंट, वास्तु द सब्जेक्ट ऑफ वास्तु इज टोटली फिजिकल, तो हम जो सिर्फ कर रहे थे एंड कन्फाइनिंग अ सब्जेक्ट ओनली टू द रेल्म्स ऑफ द फिजिकल रियलिटी विच इज वास्तु, द मोमेंट यू इंटीग्रेट दैट विद द अदर डायमेंशंस व्हिच आर नॉट परसीवेबल, अब वो क्वांटम फील्ड के अंदर ही हम जा रहे हैं ना, तो मैंने कहा कि इसका नाम ही क्वांटम वास्तु रख देते हैं। एंड व्हाई डज इट से यू आर इनफाइनाइट हियर? व्हाट डज दैट मीन? You see, you are infinite is, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि हमारा जो माइंड है वो we have one logical mind, which is where these sense organs, it interacts and interplays with these sensory perception. And then we have a subconscious mind, right? अब हम कहते हैं कि भाई everything is energy. Quantum says everything is energy. Theologians कहेंगे कि everything is God.
तो आप मान लीजिए कि एक फील्ड है, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट फील्ड, वेदर इट इज फिजिकल, मेटाफिजिकल, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बट वी आर पार्ट ऑफ दैट फील्ड, राइट? अब जो कुछ भी हो रहा है, ये हो तो उसी फील्ड में रहा है, हमें वो फील्ड ही नहीं दिख रही, तो लॉजिकल माइंड कहेगा कि तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट द क्वांटम माइंड सेज कि नो, देयर इज अ फील्ड दैट एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू नो, in that field, and that field you can channelize through your mind. तो अब आप देखिए कि हमारी जो सेंसरी परसेप्शन है, अब इसमें हमने कोई चीज़ भी परसीव करी, whether you heard something or you've seen something or you've smelled something, आपकी कोई भी सेंसरी परसेप्शन है, the moment you perceive there will be an emotion which will be released, which will be from your, fundamentally from your memory. वो जैसे ही इमोशन रिलीज होती है, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, गुड, बैड और व्हाटएवर यू माइट से। अब ये जो आपने कुछ परसीव किया, उससे एक इमोशन रिलीज हुई, उसको आपने एक्सपीरियंस किया, और ये जो आपने एक्सपीरियंस किया वो जब रिपीट होता है तो वो आपकी मेमोरी में चले जाता है, और जब ये साइकिल रिपीट होते जाता है तो वो आपका एक बिलीफ बन जाता है। तो हमारे जितने भी बिलीव्स हैं, ये इसकी अब बेस क्या है? इसकी बेस हमारी सेंसरी परसेप्शन है। करेक्ट। सो व्हाटएवर वी बिलीव इन एज राइट और रॉन्ग इज बेसिस आवर सेंसरी परसेप्शन। ये क्लियर है? बिल्कुल। And all our sensory perceptions, they have their limitations. You're only seeing half the things. We can't see ultraviolet, we can't see infrared, we can't hear the dog whistles. There are so many tastes which we can't. So अब it doesn't mean कि they don't exist. पर अब हम जिस चीज़ को मान लें कि भाई ये सिर्फ sensory perception is real, then we are limiting ourselves. Correct. Right? You are infinite just says कि भाई ये आपने अपने आप को confine कर लिया है based on your beliefs. Sensory beliefs. But factually, you are way beyond. I mean, like, if you just remove this part, if you remove the logical part out of it, then you are infinite because you are part of the field. तो हमको ये फील्ड में और हमको कन्फाइन करने के लिए क्या है? हमारी जो ये सेंसरी परसेप्शंस हैं, यही हमारे को कन्फाइन कर रही है कि भाई रियल तो यही है। सरल भाषा में कहें तो आप ये कह रहे हो कि जो दिखता है उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें हैं। और अगर आप बिलीव करने लगते हो और उसको मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें जो अभी आपको दिखती नहीं है, वो भी मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू ट्राइंग। एग्जैक्टली, यू पुट इट वेरी वेल। तो ये कितना साइंस है, कितना स्पिरिचुअलिटी है? You see, quantum is all science. Quantum is all science, that, you know, the finest form of matter, the smallest form of energy, the quanta, it's scientific, right? And like I said earlier कि energy follows thought, और उनका quantum ने आ गया कि the observer's effect। तो एक ये तो अब scientific एक explanation है कि energy, you know, follows thought, and everything is energy. Energy cannot be created or destroyed. It always was, is, and will be. So now this is a scientific part of the existing world. This is the established theory. Established theory. Theologians कहेंगे कि God always was, is, and will be. Everything is God. The rest are details. अब आपने एनर्जी कहना है तब ठीक है, आपने गॉड कहना है तब ठीक है, बात हम एक ही कर रहे हैं, राइट? दोनों इन्फिनिट है। गॉड इज इन्फिनिट, सो इज द एनर्जी। करेक्ट, राइट? दे आर बोथ इन्फिनिट। So what are you and me? हम भी इस infinite का part. Now whether you call it a spiritual DNA or you call it a quantum DNA, हमारा DNA तो वही है. The origin is just that. तो when we realize कि भाई we have a, you know, we are a part or we've emerged from a spiritual DNA, तो ये DNA तो infinite है. When it is a DNA of the source, then that DNA is infinite. अब वो DNA, when that gets entangled to our mind, and it gets entangled to give us this experience called life, because by itself वो DNA क्या कर सकता है? It can't experience itself. But when it merges with the mind, then that is what helps us to get this experience which we call life. तो हमारा spiritual DNA तो limitless है, it is infinite. पर हमारा माइंड जो है, अब क्योंकि वो सेंसरी परसेप्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसी को रियलिटी समझता है जो वो परसीव कर रहा है। बट हमारा जो सबकॉन्शियस है, दैट इज स्टिल एसोसिएटेड एंड कनेक्टेड टू दैट इन्फिनिट। करेक्ट। तो हम इन्फिनिट हैं, पर ये हमारे सबकॉन्शियस में है, हम इसको कॉन्शियस में नहीं ला सकते। दैट जो हम लाते हैं, दैट हैपेंस विद मेडिटेशन, दैट हैपेंस विद प्राणायाम, दैट हैपेंस विद, यू नो, अभ्यास। तो वो
आ जाता है, but then that becomes a totally different subject. But the fact is कि this, when we realize that we are actually a part of the infinite, हमारा जो DNA है वो तो infinite का है, पर हम अपने आप को जो confine कर रहे हैं, that is based on our beliefs. और हमारे beliefs क्या हैं जो हम perceive कर रहे हैं. तो हमारी perception ही हमारी limitation है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई we have to go beyond what your sensory perception is. So the message in this book that you have for people is don't limit yourself. Don't limit yourself. Absolutely. And then there are various exercises, there are various suggestions which are given how to, follow, what rituals you can do, how to better yourself, how to cross your self-created limitations. वो सारा कुछ इसमें one has tried to confine that in a form so that, like this is the first take. This is the first exposure of people to understand what quantum vastu is. तो हमने इसको बहुत ज़्यादा elaborate नहीं किया, but I've tried to keep it in as simple terms as possible. Perfect. Acha, this is quite a revolutionary thought, and I just wanted to touch upon skepticism. When you discuss this, what is the reaction of people? You see, those who are only using their logical mind. तो वो तो कहते हैं कि जो real तो वही है कि जो सामने है. What we are perceiving, this is real. But like, if you understand the Hindu mythology, हमारी theory of karma है, हमारे वो कहते हैं पुनर्जन्म भी हैं और हमारे future में भी होंगे. तो वो तो कहते हैं कि आत्मन it's a continuum. ये जो हमारी life है, this is just a phase. Correct. So this is just a phase in that big journey. Infinity. ये एक phase है. अब वो phase किसी का 100 साल का है, किसी का 90 का है या whatever it is, वो it is just a phase. But it is not the entire journey. It's not the entire journey, which is what the quantum field is, or what, let's say, what God is, or whatever you want to call it. कोई उसको O point energy कहता है, कोई उसको consciousness कहेगा. There are various names. कोई spirit कहेगा, कोई कुछ कहेगा, but you call it whatever. So the skeptics, yes, they definitely need to question, or they do question कि भाई reality तो वही है. उनसे मैं एक चीज सिर्फ ये पूछता हूँ कि आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, and when you get a sound sleep, how do you feel? Better, refresh, better. फिर मैं पूछता हूँ कि how do you know you slept well? जब आप सो भी रहे हैं और सुबह आप उठे हैं, how do you know you had a good sleep? There's no way. Who was awake? This starts, this is what ignites कि क्या awake कौन था? मैं तो सो गया था. Who was awake? How did I have? And जब हम सोते हैं तो we disconnect ourselves from our sensory perception. We get into a different world. Right? तो ये तो खैर अब सब्जेक्ट हम बहुत दूर ले जाएंगे. वो अब तो वो ये प्रूव करा रहे हैं कि जो थॉट है इट इज एक्चुअली सब्सटेंस. इट इज नॉट जस्ट अ थॉट. जो सब्सटेंस बनता है ये थॉट से ही बनता है. ये सोफा भी जो है जिस पे हम बैठे हैं, ये किसी के तो थॉट में पहले आया होगा ना. करेक्ट. ये कलर होएगा, ये फैब्रिक होएगी, ये डिजाइन होएगा, तो उसने बनाया. उसने उस थॉट को परस्यू किया और ये सब्सटेंस बना. तो ये क्योंकि सब्सटेंस बना, हम अब लॉजिकली जो हमारा माइंड है अब वो कहेगा कि नाउ दिस इज सब्सटेंस. क्वांटम कहती है वो थॉट आ गया, वो सब्सटेंस है, दैट इज सब्सटेंस. व्हाटएवर टाइम इट टेक्स, बट वो बन जाएगा. वो बन जाएगा. आप उसको परसीव नहीं कर सकते एज सब्सटेंस, बट योर थॉट इज सब्सटेंस. So that sounds so logical when you think of all the progress human race had seen. It started with a thought, right? Absolutely. And then now we see every day we are progressing so fast, so rapidly. Yeah. Because somebody is thinking about it. Exactly. It is just the evolution of thought, you can say. अच्छा, एक बात बताइए राकेश जी, आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपने काम किया, कोई ऐसा किस्सा बताइए जहाँ पे क्वांटम वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके रेडिकल चेंज आ गया हो. तो ये एक बड़ा रिसेंटली हुआ था एपिसोड. इसमें क्लाइंट had asked me to come over and they were little concerned about their children. तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं ताकि इनका फोकस ज़्यादा अच्छा हो स्टडीज़ में और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बढ़े. तो एक तो बच्चे का ज़्यादा अच्छा था, दूसरे का थोड़ा सा इट वाज स्लाइटली लेस. तो वो कंपैरिजन हो जाता है ना, तो विच इज़ वाई दिस थिंग केम अबाउट कि भाई आके ज़रा देखिए. सो उनको फिजिकली जो करना था उस बच्चे के कमरे में, about the colors was changed and the again orientation of the bed was changed. So a few changes were made at the physical level and
आई देन स्टार्टेड टेलिंग द चाइल्ड कि भाई आप अब विजुलाइज करो दैट यू आर नाउ इन द टॉप 5 ऑफ योर क्लास। हम्म, तो आपकी जो स्कोर शीट है इसको भूल जाओ, हम्म, whatever it is, just forget what it is. What you want to see is what you have to just imagine. हम्म, फिर पहला सवाल आया उस बच्चे का, तो मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मैं कहा नहीं, पढ़ाई तो करनी भी पड़ेगी, बट आपके जो आप पढ़ोगे उसका आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हम्म, तो उन्होंने कहा वो कैसे? मैं कहा क्योंकि आप जो रिजल्ट चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो तो आपने पहले ही देख लिया। तो खैर आई डेंट गेट इनटू डिटेल्स क्योंकि बच्चों को क्या ज़्यादा समझाते हैं, बट ये दिस इज़ व्हाट यू नो क्वांटम इज़ ऑल अबाउट, यू सी द फ्यूचर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो खैर शी स्टार्टेड फॉलोइंग, कि जो सजेस्ट किया था तो वो उन्होंने वैसे फॉलो किया। तो उनकी इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स, नॉट ओवर अ फ्यू मंथ, ओवर द ईयर्स, यू नो, फ्रॉम रियली वेयर दैट चाइल्ड वाज एंड वेयर चाइल्ड लैंडेड अप वाज क्वाइट फिनोमिनल। हम्म, अब उसके बाद बात आई कि भाई अब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, एंड बाहर जाना है तो फलां फलां कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलनी चाहिए। तो हमने कहा देखिए कमरा वही है, इस कमरे के अंदर तो जो करना था वो सारा कुछ कर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? अब क्वांटम कह रहा है कि भाई चलो फिर माइंड में चलो। तब उन्हें सजेस्ट किया गया कि अच्छा अब आप विजुलाइज करो कि आप उस यूनिवर्सिटी में हैं, अब आपके वहाँ पे फ्रेंड्स बन रहे हैं, नाउ यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग फॉर पिकनिक्स विद योर फ्रेंड्स। हम्म, तो यू सी जो फ्यूचर का पाथ उनका अनफोल्ड करना था वो, एंड दैट चाइल्ड डिड इट यू नो फैंटास्टिकली आई वुड से। हम्म, वो वाकई उनको ये फीलिंग आती थी कि मैं वहाँ पहुँच गया एंड आई एम मिंगलिंग। वो तो बता देते थे कि भाई हमने आज बर्गर्स खाए, आज हमने कोक पिया। हम्म, तो वो एक्चुअली वो दैट चाइल्ड स्टार्टेड लिविंग दिस एक्सपीरियंस कि भाई हाँ ये हो रहा है। हम्म, द चाइल्ड एक्चुअली लैंडेड अप इन दैट यूनिवर्सिटी हम्म, which was earlier thought to be very difficult, but it was like a smooth sail. हम्म, अब स्मूथ सेल इन द सेंस कि जब कोई चीज हो जाती है तब तो वो बड़ी स्मूथ सेल होती है, बट जो भी हिकअप्स आए उनको फॉर यू नो इन द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग वट एवर सर्टिफिकेशन एटसेट्रा फ्रॉम वेर एवर, वो जो चैलेंजेस जो भी थे वो दे ऑल केम एंड दे वर मेट विद, एंड इवेंचुअली द चाइल्ड लैंडेड अप वेयर द चाइल्ड शुड हैव। हम्म, तो ये एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया है कि अगर बच्चे ये कर सकते हैं हम्म, तो बड़ों को करने में क्या इसमें है? हम्म, यू सी द क्लैरिटी और द स्ट्रॉन्ग डिजायर विच यू हैव हम्म, टू अचीव समथिंग, हम्म, उसका फुलफिल ना होने की एक ही वजह है, हमारा लॉजिकल माइंड। हम्म। कब, क्यों, कैसे? तो अगर आप बिलीव करो तो फिर वो रियलाइजेशन हो वो जाएगा। रियलाइजेशन भी होएगी एंड द पाथ टू दैट स्टार्ट्स अनफोल्डिंग। हम्म, आप बिलीव ही नहीं करोगे। आप देखो एक एग्जांपल लो, लेट्स से देयर इज एन एथलीट एंड देयर इज सम इंटरनेशनल इवेंट हैपनिंग, लेट्स से ओलंपिक्स आर हैपनिंग। तो अब जो एथलीट है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं तो ये रेस जीत नहीं सकता, या ये इवेंट में मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। तो डू यू थिंक देयर आर एनी चांसेस ऑफ दैट एथलीट रियली विनिंग दैट रेस और कमिंग फर्स्ट? इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो नॉट ओनली बिफोर द इवेंट, वो फॉर इयर्स दे आर ट्रेन्ड टू प्रैक्टिस एंड विजुलाइज। एंड वी सी दैट हैपनिंग लाइक ऑल द दैट टाइम। फिजिकल एक्सरसाइज और जो रिजीम उनको फॉलो करनी पड़ती है ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड द डाइट, ये मेंटल रिजीम भी उनको फॉलो करनी पड़ती है अब। और ये पॉपुलर कल्चर में दिखता भी है, जो रैग्स टू रिचेस स्टोरीज हैं उसमें हम अक्सर सुनते हैं कि ही वाज विजुअलाइजिंग फ्रॉम डे वन, एंड समहाउ डोर्स ओपनड व्हिच ही और दे शी नेवर नेवर थॉट, या इमेजिन्ड, राइट? एग्जैक्टली। सो ये जो विजुअलाइजेशन की जो बात है, योर इमेजिनेशन, दिस इज नाउ यू नो वन सीज दैट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। Sports is one thing I've told you. It's not just your practice, but it is your visualization which really helps. And you have so many mentors which are doing just this. And there are techniques, you know, for different sports. There are different techniques which can be explained to the, you know, the sports person. And when they follow that, so along with the practice, this really takes things forward. ये होगी स्पोर्ट्स, जो सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, राइट? अब उसी चीज को आप ले आओ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, या आप उसको फैमिलीज में ले आओ। अब फैमिलीज में क्या इश्यूज आती हैं? या हेल्थ की आएगी, या रिलेशनशिप्स की आएगी, या फाइनेंस की आएगी। द थ्री प्रिडोमिनेंट इश्यूज, करेक्ट। राइट? कि फाइनेंसेस ऐसे हैं, वॉट एवर, हेल्थ ठीक नहीं है, या रिलेशनशिप ठीक नहीं, बाकी छोटी मोटी बच्चे नहीं पढ़ते, सुनते नहीं है, वो तो खैर वो तो चलते ही रहेगा। अब देखिए इन तीनों इश्यूज का इफ यू लुक एट कि भाई वास्तु पर्सपेक्टिव क्या है,
So obviously there are certain zones which are responsible for all three of these. For example, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, then your north section of the house, not strictly north, but I'm saying the north section, north, northeast, even towards the east, ये बड़ा responsible होता है to have a smooth cash flow or a better cash flow, let me put it this way. वैसे ही जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो हमारा साउथ ईस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल अलॉन्ग विद नॉर्थ, ये दोनों व्हेन दे आर कपल्ड. और तीसरी चीज है कि जो हमने कही कि रिलेशनशिप्स की, देन द साउथ वेस्ट, यू नो, दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वो दैट इज अ जोन ऑफ वेयर व्हाट वी कॉल इज रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स. अब ये तीन जोन, ये तीन इश्यूज, यू सी, नाउ एज अ थंब रूल, अगर आपको कोई भी चीज की, इन तीन इश्यूज की आप फेस कर रहे हैं कोई समस्या, तो आप अपने घर के नॉर्थ को पहले देखो, नॉर्थ ईस्ट को देखो कि वहाँ पे क्या है. इनवेरिएबली वहाँ पे क्लटर होगा, कोई लाल चीज़ होएगी, कोई सॉलिड चीज़ें पड़ी होंगी, कोई टूटा फूटा सामान पड़ा होएगा, समथिंग दैट इज प्रिवेंटिंग ईदर अपॉर्चुनिटीज और फॉर फंड्स टू फ्लो इन, वो आपको नॉर्थ में दिख जाएगा. वेरी सिंपल थिंग. लाइक वाइज फॉर हेल्थ, आपके साउथ ईस्ट के अंदर सेम चीज़, क्लटर, टूटी हुई चीज़ें, ब्रोकन टाइल्स, ब्रोकन वट एवर, यू नो, क्यूरियोज, कुछ भी हो सकता है, आप वो साउथ ईस्ट से निकालो. या साउथ ईस्ट के अंदर आपको पानी मिलेगा, नीला रंग मिलेगा, काला रंग मिलेगा, विच आर, यू नो, डिपिक्टिंग द वाटर एलिमेंट. तो पानी और आग का तो यू नो तालमेल बनता ही नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज अ पेरिनियल व्हाट यू कॉल कॉन्फ्लिक्ट इन द टू, तो वो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा. बात आई फिर आपकी रिलेशनशिप्स की, जहाँ हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप अपना साउथ वेस्ट देखो, तो वहाँ पे या कलर होएगा कोई अजीब, जिस विच इज़ नॉट कंड्यूसिव टू यू नो साउथ वेस्ट, तो हम कहेंगे कि भाई इसको चेंज करा लो. या ये कलर जहाँ चाहिए, येलो इज़ अ कलर और अर्दी कलर्स आर डिजायर्ड ओवर देयर, तो वन सेज कि भाई इनको इंडक्ट करा लो. तो ये तो हमने फिजिकल एडवाइस दे दी. अब इसको, सिर्फ इसको करने से क्या सारा कुछ ठीक हो जाएगा? अब बात आ जाती है आपके, यू नो, हाउ डज योर माइंड कम इनटू प्ले. भाई व्हेन वी आर सेइंग कि आपके, अब लेट्स से फाइनेंसेस हमने ठीक करने हैं, तो हमने नॉर्थ में करेक्शन कर दी या इन द फाइनेंस जोन करेक्शन कर ली, पर माइंड में आपने करेक्शन ही नहीं करी. पहली करेक्शन इंक्विजिटिवनेस कि कब होएगा. अब लॉजिकल माइंड आ गया ना, कब होगा, कैसे होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा. दीज आर नॉट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. आपको फाइनेंसेस बेटर चाहिए तो यू हैव टू विजुअलाइज दैट योर फाइनेंसेस आर बेटर. हाउ आर दे गोइंग टू बी बेटर इज नॉट योर फोटे, इट इज बियॉन्ड योर रेल्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब हम लॉजिकल माइंड के बाहर जा रहे हैं कि मेरे को एक चीज चाहिए और मैं पहले शुरू कर दूं कैसे आएगी, पैसे नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम फर्स्ट क्रिएटिंग ब्लॉक्स इनसाइड मी. पहले ही लिमिटेशंस डाल दी. तो जैसे मैंने अब वो कहा, थॉट इज सब्सटेंस, तो मेरा सब्सटेंस एक ब्लॉक तो मैंने डाल दिया ना. कैसे? ये हमने नहीं डालना. हमें फाइनेंसेस ठीक करने हैं, हमें नॉर्थ को करेक्ट करना है, और अपने माइंड में हमने वो देखना है जो हम चाहते हैं कि वो हो गया. ये रोंडा ब्रायन की जो एक किताब है द सीक्रेट, वो भी इसी बारे में बात करती हाँ, है एग्जैक्टली. कि आप जो चाहते हो यूनिवर्स से मांगो, और आप ये मत सोचो कि वो कैसे आएगा, बस आप मांगो और बस सच्चे दिल से मांगो, वो और आ वो जाएगा. कहीं ना कहीं से दरवाजा खुलेगा और आपके पास आ जाएगा. दैट सेम थिंग, You say it is exactly the same thing. उसको I'll take it one step further. ओके. आपने कोई चीज मांगी, वो ऑलरेडी आपके पास है, नहीं तो आपको वो थॉट ही नहीं आएगा. आई एम गोइंग टू क्वांटम एंड हायर realms of quantum. The past, present and future is already existing because energy is there in the past, present and the future. And energy follows thought. तो आप कहेंगे कि थॉट आ गया कि मुझे ये चाहिए, तो लॉजिकल माइंड क्या कहेगा, जरिए बनाओ, प्लान करो. क्वांटम कह रहा है कि ये चीज चाहिए, थॉट आ गया जो तेरे पास है. फ्यूचर वो की किसी फ्यूचर possibility में हाँ, आपके पास वो है. फ्यूचर में आपके पास है, आपने अब उसको इनकाउंटर करना है. तो अब उसको इनकाउंटर करने के लिए व्हाट हेल्प्स यू गो थ्रू द जर्नी, इट्स योर बिलीफ. अब आप उसी जर्नी में डिसबिलीफ से चलते जाओगे तो आपकी रुकावटें और थकान बढ़ती जाएगी. बट व्हेन दिस जर्नी यू आर अंडरटेकिंग विद द बिलीफ कि वो है, आई जस्ट हैव टू रीच दैट बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर. कोई थॉट आपके पास अगर आया है, अब ये सिर्फ सोचने की और समझने की बात है, वो हो चुका है. अब उसमें लॉजिक नहीं है ना, कहाँ परसीव तो मैं कर नहीं रहा, कैसे हो चुका है. पर इन द क्वांटम फील्ड इट इज ऑलरेडी देयर बिकॉज वेयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर को एग्जिस्टिंग. तो वो हो चुका है, अब मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है.
अब एक्सपीरियंस करने के लिए मेरा बिलीफ मुझे एक्सपीरियंस करा देगा, लॉजिकल माइंड कहेगा कि नहीं, आप एफर्ट करो, आप मेहनत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्वांटम का यू सी इसका रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि हमको अब एफर्ट की जरूरत नहीं है। बिलीफ को कायम रखने के लिए भी बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए। हमें अपने गोल को विजुलाइज करने के लिए भी बड़ी एफर्ट चाहिए, उसका बड़ा अभ्यास होता है, तो इट डजंट जस्ट कम ओवरनाइट। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें एक जो हम बात करते हैं हमेशा परिवार में एक दूसरे से, डेस्टिनी, लोग कहते हैं मेरी तो डेस्टिनी में ये चीज़ है या नहीं है, या मैंने अपना कुंडली दिखाया, कुंडली में ये चीज़ नहीं है मेरे या है। तो क्वांटम वास्तु के स्टेप्स को लेकर क्या वो जो रोड मैप आपको आपकी कुंडली ने दिखाया, क्या वो चेंज हो सकता है? आपका बिलीफ, चेंज हो सकता है मतलब? यू बिलीव हो सकता है, हो जाएगा। यू बिलीव ये हो ही नहीं सकता, वो नहीं होगा। अच्छा। अब इसमें एक आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं कि यू सी हमारे लिए हमारी सभ्यता है ना, हमारी परंपरा, वी बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। हमारे यहाँ गीता ज्ञान है, हमें सब बताया गया है कि भाई जैसे कर्म वैसा उसका फल। तो हम कर्मों में बिलीव करते हैं, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर उस पर चल रहा है। वेस्ट डजंट बिलीव इन द पास्ट और द फ्यूचर, वो कहते हैं यही है, जो कुछ है वो यहाँ ही है। तो हमें तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के थ्योरी ऑफ कर्मा के लिए कोई चीज़ नहीं अगर हो रही तो हम कहेंगे ये हमारे कर्म है, ये होना ही नहीं था। हम उसके ऊपर आके रुक जाएंगे, फिर हम उसका कोई जरिया ढूंढेंगे, अच्छा ये कैसे हो सकता है, तो जी चलो शुरू करो, वास्तु को बुलाओ, एस्ट्रोलॉजर से पूछो, फेंग शुई करा लो, न्यूमरोलॉजी करा लो, नाम में ए ऐड कर दो, बी निकाल दो। हम क्या कर रहे हैं? हम एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे हैं, और हो क्या रहा है, हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं। चेंज तो एनर्जी हो रही है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, आप एनर्जी चेंज कर रहे हो। चाहे आपने एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वो आपको कहेगा कि ये रिंग डाल लो, या ये आप दान कर लो, या ये मंत्रों का उच्चारण कर लो। अब ध्यान से सोचो, ये है क्या? रिंग क्या है? एनर्जी है। मंत्रों का उच्चारण क्या है? वो भी एनर्जी है। दान पुण्य क्या है? वो भी एनर्जी है। तो हम एनर्जी की ही रिप्लेसमेंट करी जा रहे हैं, एंड द फील गुड फैक्टर स्टार्ट्स कमिंग इन। वेस्ट में ये चीज है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जो अगर ये तुम्हारी इशू है, नाउ यू जस्ट विजुअलाइज, यूज योर माइंड दैट यू आर देयर, और वो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस वो हमसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज हमारे पास जैसे ये जितने सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आई थिंक दे आर मैक्सिमम इन आवर कंट्री। आई एग्री। उनका सपोर्ट सिस्टम इज द श्रिंक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि जब वो नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो जाएंगे अपने श्रिंक के पास कि भाई मेरे पास ये हो रहा है। अब वो उसको रिलैक्स करेगा, वो उसको रिग्रेस कराएगा, बट कर क्या रहा है? वो वही चीज़ कर रहा है, वो एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक वो आपकी इमेजिनेशन में कर रहा है, हम अपनी करा रहे हैं कि हमने रिंग डाल दी है, हमने। हमारा बिलीफ इतना स्ट्रांग है ऑफ व्हाट वी बीन born and brought up in, that now to say कि ये it doesn't exist gets very difficult. ये क्वांटम वास्तु कह रहा है कि भाई ये भी है, वो भी है, इसको मर्ज करना है दोनों को। फिजिकली तो जो है सो है, हमको माइंड को भी इसके साथ मर्ज करना है टू गेट फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, ये तो बात हो गई इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज की और हमारी लाइफ की। ऑर्गेनाइजेशन के और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या क्वांटम वास्तु यहाँ भी हेल्प कर सकता है हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में, बिजनेस को बढ़ाने में? डेफिनेटली। ओके। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपने लेट्स से टारगेट सेट करें, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये हमारी कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, बेसिस द ग्रोथ दे द प्रोडक्शन हैज टू अलाइन इटसेल्फ कि हमने ये प्रोड्यूस करना है, वट एवर इट इज़, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और वट एवर, वो प्रोडक्शन ने उसको अलाइन करना है, मार्केटिंग ने उसको प्लान करना है, सेल्स वाले ने उसको एग्जीक्यूट करना है कि हमारे को इतने कस्टमर्स चाहिए। अब ये दीज आर जस्ट वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग। ये तीनों चीज़ें अब अलाइन होनी चाहिए। ये एक टारगेट है, अब इसको हमने प्रोड्यूस करना है, उसको हमने स्प्रेड करना है, और उसको हमने इनकैश करना है, राइट? तो ये बिजनेस है। अब कोई भी टारगेट दिया गया, प्रोडक्शन वाला कहेगा कि मेरे लिए बनाना बड़ा मुश्किल है, तो द फर्स्ट ब्लॉक, ये बनेगा ही नहीं तो फिर बिकेगा कैसे? तो पहले तो उन सारों को अगेन दे हैव टू जस्ट अलाइन देमसेल्व्स एंड विजुअलाइज कि दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट इज द टारगेट गिवन टू देम। मार्केटिंग एंड सेल्स वाले को यही करना है कि भाई हाँ, उसका स्प्रेड प्रॉपर हो गया है और इसकी रियलाइजेशन आ रही है। अब वो विजुअलाइज नहीं करेंगे अगर, और सिर्फ उसकी प्लानिंग करी जा रहे हैं, एंड प्लानिंग क्या करेंगे वो? दे विल बी प्लानिंग बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस,
भाई पास्ट में अगर एक चीज़ अच्छी नहीं हुई या पास्ट में अगर आपको 6-7% ग्रोथ मिली है तो मतलब फ्यूचर में भी हम 6-7 को क्या 10 कर लेंगे। अब ये लॉजिक हुई ना। ठीक बात है। मैं कह रहा हूँ 6-7 को 60 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल माइंड कैसे हो सकता है, हाउ, यू सी, वो पहला ब्लॉक। इफ यू बिलीव कि इट इज पॉसिबल, डोंट आस्क हाउ, बट दैट बिलीफ इफ यू कैन कैरी विद यू एंड यू फील गुड अबाउट इट and you start, they say, live from the end. Living from the end is that your belief is already fulfilled. If you can live with that feeling, there is nothing which can stop that from happening. तो कई चीज़ें हैं, ये कहनी बहुत आसान हो जाती हैं, बट व्हेन वी आर ट्रांजिटिंग थ्रू द वेरियस फेजेस टू अचीव व्हाट वी आर बिलीविंग इन, वहाँ पे हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। एंड वन डज डिरेल, विच इज़ वाई यू नो दीज कोचेस, मोटिवेटर्स एंड अदर पीपल आर देयर टू पुट यू बैक ऑन ट्रैक। अब जितने भी आजकल देखिए वो लाइफ कोच, कंपनी कोच, बिजनेस कोच, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके माइंड को अलाइन कर रहे हैं कि भाई हाँ, आपकी जो इश्यूज हैं दे कैन बी ओवरकम व्हेन यू फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। तो वो एक चार्ट बना के दे देते हैं। अब वो चार्ट बनाने से क्या होता है, आप उस चार्ट को रोज फॉलो कर रहे हो, व्हेन यू आर फॉलोइंग समथिंग रिपीटेडली। मैंने आपको जो शुरू में कहा था ना, हमारा बिलीफ कैसे बनता है, हमारा जो बिलीफ बनता है वो हमारी है परसेप्शन, परसेप्शन के बाद हमारी इमोशन, इमोशन ने किया एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गया मेमोरी में, रिपीट हो गया तो ये बन गया बिलीफ। अब मैं आपको एक चार्ट दे दूं कि ये आपने रोज करना है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, और आप उसको रिपीटेडली कर रहे हो। व्हेन यू कीप फॉलोइंग दैट, लेट्स से फॉर एज अ थंब रूल फॉर अ मंथ, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी चीज के लिए भी आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, इट मस्ट बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज को आप एक चीज को रिपीट करते जाओगे, आपका बिलीफ उसके बारे में स्ट्रांग होते ही होते जाएगा। एंड व्हेन इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग, वो आपका बन जाएगा पैराडाइम, बिकॉज देन फ्रॉम योर लॉजिकल माइंड इट विल गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जीते तो अपने सबकॉन्शियस से हैं, हम क्या, आर वी कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग वी डू? नो वी डोंट। वी लिव आउट ऑफ आवर पैराडाइम्स और आवर पैटर्न्स, हम वही फॉलो करते हैं। तो लाइफ में अगर आप खुश हैं जहां आप हैं तो आपका पैटर्न बड़ा अच्छा है। अगर आप खुश नहीं हैं जहां आप हैं तो आपके पैटर्न में कोई गलती है, आपको उस पैटर्न को करेक्ट करना है। और उसको करेक्ट करने के लिए दे आर 101 वेज। सबसे सिंपल वे मैंने आपको बता ही दिया, 30 डेज। एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर यू विल हियर अबाउट अ 30-day चैलेंज। That's why that 30-day challenge has become so popular. Yeah, exactly. आपको 30 दिन में आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। आपकी वो हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो हमने उसके बारे में भी लिखा है इस किताब के अंदर कि एक्चुअली इट इज 2 मून साइकिल्स, 28 डेज हैं। पर हमारे ये महीना 30 का है तो हम कहते हैं 30 डेज चैलेंज कर लो। बट इन 2 मून साइकिल्स, मतलब वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ द मून, वो जब कंप्लीट हो जाता है, आपकी वो पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पूरी वेव आपकी कंप्लीट हो रही है। तो अप्स एंड डाउन सारा कुछ आपका उसमें आ गया। तो 28 दिन के अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं, ये आपका बिलीफ बनने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट स्टार्ट क्वेश्चनिंग हाउ, कैसे होएगा, कब होएगा, क्यों होएगा। तो क्वांटम वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑफिसेज, फैक्ट्री, कमर्शियल स्पेसेस, घर, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, हर जगह वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखो श्रीमंत, बेसिकली क्या है कि सबसे पहले अप्लाई होता है वास्तु के प्रिंसिपल्स, क्योंकि दिस इज वन थिंग आई हैव सीन दैट इफ यू आर ओनली फॉलोइंग क्वांटम, ओनली फॉलोइंग द माइंड एंड नॉट फॉलोइंग वास्तु, आपको थोड़ा टाइम टेकन ज्यादा लग जाता है। व्हेन यू ऐड और व्हेन यू अलाइन द फिजिकल वर्ल्ड आल्सो विद व्हाटएवर यू आर बिलीविंग इन, देन द मैनिफेस्टेशन इज मच फास्टर। करेक्ट। इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं कि भाई आप जैसे जिस चीज को आप चाहते हो, तो इफ यू मेक अ विश लिस्ट एंड यू रीड दैट लिस्ट एवरी डे, यू कीप दैट लिस्ट इन योर पॉकेट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड यू कीप टचिंग इट एवरी डे। आपने अपनी जेब में रखी है और दिन में इसको 10 बार आप छू रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आप उस विश लिस्ट को एक्टिवेट कर रहे हो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि ये हो गया, राइट। वास्तु ये कहता है कि इसको अगर आप अपने वेस्ट में रख लो, विच इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स, आप जो चाह रहे हो उसकी मैनिफेस्टेशन वो जोन फास्टर कर लेगी। तो हम कहते हैं भाई एक लिस्ट आप रखो वेस्ट में और दूसरी रखो अपनी जेब में, एंड यू सी हाउ फास्ट थिंग्स हैपन।
अच्छा, एक मेरा प्रैक्टिकल सवाल है जो बहुत से लोगों का हो सकता है कि आप अपने ऑफिस या घर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? आपको सेंटर में खड़े होके देखना चाहिए थ्रू द मैप, व्हिच वन इज़ योर ईस्ट, व्हिच इज़ या वेस्ट? हाउ एब्सोल्युटली डू यू डिसाइड? या यू हैव टू स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द हाउस. But let's say your house is oddly shaped and designed where वो वो rooms are वो in. वो फर्क सब्जेक्ट हो गया. Hmm. बट यू हैव टू स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर हाउस. टेक आउट योर स्मार्ट कंपास, आजकल सबके पास है, और यू कैन बाय एन ऑर्डिनरी कंपास फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप, Hmm. एंड देन सी कि भाई कौन सी ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ आ रहा है, उसको अलाइन कर लो आप, उसको अच्छा, ड्रॉ कर लो ठीक है। मैप के ऊपर. एक्सटेंड द नॉर्थ, एक्सटेंड द साउथ, ओके। ईस्ट एंड वेस्ट. सो यू वुड नो कि ये जो अब 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, ये हम्म। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, इनके अंदर क्या आ रहा है. ओके। मेरा मेन डोर कहाँ पे आ रहा है, मेरा बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, मेरा टॉयलेट किधर है, किचन किधर है, सारा कुछ आपको उस पर दिख जाएगा. हम्म। जो तो ठीक है वो तो ठीक ही है. हम्म। अब जो गलत है, क्योंकि वो गलत कैसे है, या आपने किसी को कंसल्ट किया या अपने गूगल जी को आपने रेफर किया. हम्म। तो अगर कोई चीज़ आपकी रेफरेंस के हिसाब से गलत है, हम्म। उसके ऊपर सिर्फ आपने फोकस करना है. हम्म। होता क्या है कि जो चीज़ गलत है हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, हम्म। पर जो ठीक है सारे कहते हैं इसको और ठीक करो. हम्म। यू अंडरस्टैंड? वो इम्बैलेंस खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. हम्म। अच्छा, हाउ कैन समवन आइडेंटिफाई इफ देयर होम और ऑफिस नीड्स इंटरवेंशन? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर? You don't feel well. If you are not feeling well in where you are living or where you are working, whether it is your office or your factory, if you are not feeling happy, Hmm. that means it requires Hmm. some intervention. It has to require some identification. Hmm. Okay. जैसे हम हेल्थ के लिए करते हैं, अभी वैसे तबीयत कर- ठीक नहीं है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वन सेज कि यार चेकअप करा लो, ब्लड टेस्ट ही करा लो, डॉक्टर को मिल लो, Hmm. कि क्यों ऐसे, व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस. बट इफ यू आर फीलिंग फाइन, कभी आता है ख्याल कि चलो आज डॉक्टर को मिलके आ जाते हैं. नहीं। अच्छा, कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं जो एज एन इंडिविजुअल वन कैन फॉलो टू इम्प्रूव द एनर्जी फील्ड्स? डेफिनेटली. ये तो मतलब कि नॉट वन, दे आर सो मेनी. अब हम्म। जैसे बताया गया कि भाई आप सुबह उठ के, इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट वेयर द राइजिंग सन इज, सूर्य प्रणाम आप कर लीजिए. वो तो योगा भी है जिसका सूर्य नमस्कार जिसे कहते हैं, उसके बेनिफिट्स तो मोर देन व्हाट आई कैन एक्सप्लेन. आपको सूर्य नमस्कार को गूगल कर लो, यू विल फाइंड द बेनिफिट्स ओवर देयर. आप प्राणायाम कर लीजिए. यू सी दैट ब्रीदिंग इज, प्राणा इज द वाइटल, यू नो, द एयर. प्राणा जो हमारा है वो हमारे ब्रेथ के थ्रू ही तो जा रहा है. एंड एक चीज जो बड़ी सिंपल है, बहुत बार कही जाती है बट होती नहीं है, दैट इज दैट वन हैज टू, व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम, यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एट योर ओन पेस और एट योर ओन काउंट. कि आप इनहेल कर रहे हैं, आपने रिटेन किया, आपने उसको एक्सहेल किया, आपने फिर रिटेन किया, तो ये एक साइकिल बन गया. अब ये हर एक का अपना साइकिल है, वेदर इट इज ऑन अ काउंट ऑफ 4 और 6 और 8 और व्हाटएवर. तो आप एक ये प्री डिटर्मिन्ड साइकिल अपना बना लो. दिन में आप इसको जरूर करो. व्हेन यू स्टार्ट योर डे, तो यू स्टार्ट विद, यू नो, एक्टिवेटिंग योर सिस्टम. ओके। तो वेदर इट इज अ काउंट ऑफ 4-4-4 और इट इज 4-7-4, जो भी है, आपको लगे कि मैं इनहेल कर रहा हूँ, मेरा 5 का बड़ा ठीक आ रहा है, मैं रिटेन करता हूँ वो 4 में ही ठीक है, मैं एक्सहेल करता हूँ वो 7 हो जाता है, और फिर मैं रिटेन कर रहा हूँ वो 2-3 होता है. अब आप रेफर ना करो कि भाई ये ठीक है कि नहीं. आपको सूट कर रहा है तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है. उसको फर्दर रिफाइन कैसे करना है वो बात की बात आती है. बट टू स्टार्ट यू हैव टू फॉर्म योर ओन साइकिल. नंबर 1, वंस यू स्टार्ट योर डे विद दिस साइकिल, यू आर एक्टिवेटिंग द एनर्जीज ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड. इसको दिन में आपको एटलीस्ट ट्वाइस रिपीट करना है. अब आप कहोगे कि अब वो कैसे होएगा, अब आप ऑफिस पहुंच गए, काम में आप इतने मशरूफ हैं, तो आप भूल ही गए कि अब हम सांस ले रहे हैं. भाई मैं यही भूल जाऊं अपने काम में कि मैं जिंदा हूं कि नहीं, तो मैं कर किसके लिए रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं. वेल सेड. ठीक. या भाई मेरे को सांस में ले रहा हूं, आई ओनली हैव टू बी अवेयर. एंड अवेयर फॉर नॉट कि आपने आधा घंटा ऑफिस में करना है. आपने 2-3 साइकिल्स करने हैं दोपहर को, घर पहुंच के शाम को फिर 2-3 साइकिल्स कर लो. ये जस्ट बी अवेयर दैट यू आर ब्रीदिंग. दैट मीन्स यू बिकम अवेयर दैट यू आर अलाइव. एंड थैंक गॉड दैट यू आर देयर. हम इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं. अब इसमें बताओ, आप कोई भी वास्तु कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप, मैं कह रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट वास्तु कर लो, घर तोड़ के नया बना लो, नए घर को शुरू से एंड तक कर लो. आप अगर यही भूल जाओ कि मैं ब्रीद कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली दिस इज माई लाइफ फोर्स, नॉट वॉट आई हैव गॉट फ्रॉम वॉट आई हैव डन.
इफ यू आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर अलाइव, आप वास्तु से आपको हैप्पीनेस जरूर आ जाएगी, इन द सेंस कि मटेरियल कंफर्ट्स डू कम, पर उसको एंजॉय करने के लिए भी यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं हूँ, आई एम एंजॉइंग। कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस तो चाहिए। वो कॉन्शियसनेस आप ब्रीदिंग की अवेयरनेस से ही ला सकते हो। बहुत अच्छा टिप है ये। अच्छा राकेश जी, 30 years, thousands of clients, 3 books now, third book is also out. क्या विजन है आपका? What is it that you're looking forward to for your next 5-10 years? तो आपने एक बड़ा अच्छा और बड़ा, आपका मैनिफेस्टेशन क्या है अपने लिए? मेरी मैनिफेस्टेशन यही है कि नाउ आई फील कि अब वो जो 36 चैम्बर्स ऑफ शॉलन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब मुझे लग रहा है कि हम अब 30 तो पार कर गए हैं, 30 साल हो गए हैं, तो वो 30 तो पार कर गए हैं। अब ये जो आखिरी 5-6 हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान हैज़ टू बी इन डेवलपिंग द माइंड। ओके। या सो माय फोकस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और टिल व्हेनेवर इज टू गेट मोर कनेक्टेड टू, जिसे हम कहते हैं क्वांटम फील्ड, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एंड हाउ इज द सबकॉन्शियस माइंड होल्डिंग माय स्पिरिचुअल डीएनए which I am not aware of. I know it is there, but वो अवेयरनेस नहीं आई है, वो मतलब कि एहसास नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पता तो है, नॉलेज आ गई है, बट उस नॉलेज को एक्सपीरियंस करना इज व्हाट वन नीड्स टू डू। क्योंकि जिसका भी वो हो जाता है ना, देन व्हाट यू थिंक इज सब्सटेंस, उसको सब्सटेंस बनने में फिर क्या दिक्कत आएगी? बिल्कुल। एंड देन यू रीच अ स्टेज वेयर यू फाइंड कि नाउ देयर इज इनफ मटेरियल सब्सटेंस अराउंड मी, I have to now give back to the society. So now it is not, you are not doing it कि भाई हम अब accumulate करें. Now you are doing it कि भाई now what can I give? How much can it be spread? You spread the knowledge, you automatically you are spreading the goodness. And then whosoever is following, they further अपना substance इकट्ठा कर लिया, then one says कि okay now let's distribute this substance also. तो मेरे को तो फ्यूचर यही लगता है कि भाई one has to now focus more on the self. And to really understand these finer mysteries of life. Excellent. Your journey has been excellent, and I think now the vision that you have shared is even more captivating. Look forward to hearing more from you. Certainly. Look forward to learning a lot from you. And I hope everyone who's watching this enjoyed this talk and learned as much as I did. And I thank Mr. Chawla for coming over. Thank you so much, sir. My pleasure. Thank you for sharing your wisdom with us. Look forward Anytime, to meeting you again and learning more from you. Certainly. Thank you so much. Thank you.